کی جمہوریت کو بچانا ہے، اور یہاں پر ہندو مسلم اتحاد کا ثبوت دینے کے لیے آج ہم سے زیادہ ہی ہندو بھائی ہماری ریالیوں میں آ رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ہم اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آداب ناظرین، IND ٹوڈے کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہر خبر ہے خاص، ان خاص خبروں میں سے ہم نے آپ کے لیے کچھ سمیٹ کر لائی ہیں کچھ خاص خبریں۔ دیکھتے ہیں یہ خبر نامہ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا، جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔ ملک کے حالات اور CAA اور NCR کے حوالے سے پیدا شدہ بحران کے پیش نظر MS ایجوکیشن اکیڈمی نے کل جمعرات 9 جنوری کو یوم توبہ منانے کا اعلان کیا ہے۔ ڈائریکٹر MS ایجوکیشن اکیڈمی محمد انور نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی طرف سے چلائے جانے والے MS اسکول اور کالج کا اسٹاف اور طلباء روزہ رکھتے ہوئے توبہ و استغفار طلب کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت توبہ و استغفار کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتے ہوئے اپنے بندوں کو مصائب اور آلام سے نجات بھی دیتا ہے۔ کل ہم تمام بچے، ہمارے سے جڑے ہوئے تمام پیرنٹس اور ویل وشرز بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں انشاءاللہ، وہ سارے روزہ رکھیں گے۔ اپروکسیمیٹلی یہ 30-35 ہزار اسٹوڈنٹس اور اسٹاف مل کے ہوں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو حالات آئے ہیں ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جب بھی ہم سے ناراض ہوتے ہیں تو ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، تو اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو کم کرنے کے لیے ہم نے سوچا کہ روزہ رکھیں گے، جب اللہ سے مانگیں گے تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب ایک روزدار کی دعا اللہ کے پاس بے انتہا قبول ہوتی ہے، اللہ اپنے بندوں سے متوجہ ہوتے ہیں۔ جب روزہ رکھتا ہے، روزے میں ہوتا ہے، تو سارے انسانیت کے لیے دعا کریں گے، سارے ملک بھر میں امن، شانتی، بھائی چارگی کی دعا کریں گے۔ ہم ہمارا بچپن کا ہندوستان چاہتے ہیں جہاں ہم ہنستا کھیلتا، تمام مذہبوں کو آزادی، ہر وہ پریکٹسز کرنے کے لیے، ہر ایک کو چھوٹ، وہ ماحول کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے بندوں سے، تم کبھی پریشان مت ہونا، اگر تمہارے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک بھی ہو جائیں تو میں تمہارا رب ہوں، تم میرے طرف لوٹ کر آؤ اور تم مجھ سے معافی طلب کرو، میں ہی تمہارا رب ہوں، تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تو جب کل چھوٹے سے ننھے بچے، جس میں ضعیف بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور یہ سب اللہ کی رحمت کو جو متوجہ کریں گے، تو ہم قوی امید رکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ضرور آئے گی اور ملک بھر کے حالات، بلکہ سارے دنیا کے حالات بہت اچھے ہوں گے۔ میں یہ میڈیا کے ذریعے میں تمام ناظرین، سننے والوں کو میں اس بات کی درخواست کروں گا کہ کل یہ یوم توبہ جو MS گروپ آف انسٹیٹیوشن کی طرف سے جو ڈکلیئر کیا گیا ہے، اگر آپ ہمارا ساتھ دیں اس کاز میں، ملک بھر کی تمام بھائی چارے کے لیے، انسانیت کے لیے، انٹیگریٹی کے لیے اگر ہمارے ساتھ ہو جائیں، آپ بھی روزہ رکھیں، دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ اکثر ہم لوگوں نے علماء سے سنا ہے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھیں، بلکہ اس کو معمول بنا لیں، ہر نماز کے بعد اگر 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھیں اور اللہ سے مانگیں تو بے شک اللہ ہمارے سے راضی ہوں گے۔ اور خاص طور پہ صدقے والے ماحول کو ہم معمول، صدقے کی بڑی فضیلت آئی ہے، بڑے بڑے جو اللہ کا غضب ہے وہ صدقے کے ذریعے ختم ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں، اور
जहाँ तक मैंने सुना है, देखा है, कुछ लोगों से मैंने भी सुना है, आज हमारे नमाजी कम हो गए हैं, 2 से शायद 5% रेगुलर नमाजी रह गए हैं। अगर हम अल्लाह के घर को आबाद करें, अगर अल्लाह के घर को आबाद करके सारी इंसानियत के लिए अमन भाईचारगी मांगेंगे, तो मैं समझता हूँ इससे अच्छा क्या हो सकता है। और जो होगा हम सब जानते हैं, जो हालात आज हैं, जो कल बदलेंगे, वो अल्लाह की तरफ से ही होगा। हम उसी चीज़ पर यकीन रखते हैं और हमारा ईमान वही कहता है, यकीन वही कहता है। ये किसी इंसान की हुई चीज़ें नहीं, जो कुछ चीज़ें हैं वो अल्लाह की तरफ से है और हम अल्लाह को राज़ी करेंगे। कल हमारा साथ दीजिए और सभी लोग से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे अपने मकसदों में हम सबको कामयाब करे और मुल्क भर के हालात बेहतर हों और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हों, अच्छे हों और हर कोई खुशहाल ज़िंदगी गुजारे और अपने अपने राइट्स को पूरा एंजॉय करे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। हालात के लिए सारी, उसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को लेकर हम नहीं, बल्कि हम चाहते हैं कि सारी इंसानियत के लिए, हम चाहते हैं कि सारी भाईचारगी के लिए। जैसे मैंने अभी बात रखी कि हमारा अपना बचपन था, जैसे हमारा अपना बचपन हम लोगों ने देखा कि तमाम मज़हब मिल्लत के लोग एक दूसरे के साथ जुड़ा करते, एक दूसरे के फेस्टिवल्स में होते, एक दूसरे के सुख दुख में होते, एक दूसरे की खुशी का हिस्सा बनते। वही माहौल हम सारे हिंदुस्तान भर में वापस चाहते हैं और वही चाहते हैं। सारे आलम के तलबा बाहर निकल रहे हैं, उनका साथ देखिए, इसमें पर्टिकुलरली जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, बहुत सारे तंजीमें बहुत सारा काम कर रहे हैं, वो अपनी अपनी फिक्रों से काम कर रहे हैं, अपने अपनी फिक्रों से जुड़ी हुई। हम हमारे तरफ से जो काम हम जो इनिशिएट करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ अल्लाह से अपनी बातों की, अपनी गुजारिशात को लेकर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो हालात बदलेंगे, हमारा यकीन है कि अल्लाह की तरफ से बदलेंगे। तो ये भी हमारा एक हिस्सा है कि हम ये सारे के सारे अमन जो है, सारे जो है मुल्क भर में नहीं बल्कि सारी दुनिया में अमन आए, ये हमारा मकसद है। ये सिर्फ जो है गुजारिश भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे देखेंगे कि ये हालात इंशाल्लाह जैसे जैसे बदलेंगे, तो हम तो इसको अपना मामूल भी बनाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। ऐसे जब भी जो है हालात आएंगे, तो इस तरह सबको राग़िब करने की हम बात रखना चाह रहे हैं, क्योंकि हम सबको उसी तरफ जुड़ना चाहिए जहाँ से ये हालात आ रहे हैं। हमारा फोकस के वक्त हटा हुआ है कि हम ये होने से ये हो रहा है, ऐसा होने से ऐसा हो रहा है, ये फलां चीज़ों की वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है। जहाँ तक मेरा अपना यकीन है, ये सब अल्लाह की तरफ से तय है। जो होते हैं अल्लाह की मर्जी से होते हैं और जो बदलेंगे वो भी अल्लाह की मर्जी से होते हैं। तो हम चाहते हैं कि अल्लाह ही हमारे हालात को बेहतर करे। यूनाइटेड मुस्लिम तरफ से जो अपील करे पब्लिक से जो एक बात सुन लीजिए, कहीं पे भी किसी कदम की, मैंने एक बात आपको वाज़ेह फरमाई, ये सारी इंसानियत का एक अमन वाला पैगाम हम सारी इंसानियत के लेना चाह रहे हैं। तो इसलिए इसमें बात सिर्फ वाज़ेह हो गई कि कहीं पे भी किसी नहीं, कल हम लोग कल इसलिए रखे, हम ये चाह रहे हैं कि जब ज्यादा से ज्यादा लोग रोजा रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होंगे, तो क्योंकि एक रोजदार की दुआ अल्लाह पाक बेइंतहा कबूल फरमाते हैं। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि हमारी दुआओं में वो असर लाने के लिए, दुआओं में असर बढ़ाने के लिए वो रोजा रखा जा रहा है। वरना ऐसा ये रोजा कोई फर्ज रोजा नहीं है जिसमें ऐसी चीजें, नफिल रोजा है। क्योंकि नफिल रोजा रखने की हमारे पास गुंजाइश है, इजाजत है। तो अल्लाह ताला जो है एक रोजगार की तरफ अपनी रहमत को मुतवज्जो करते हैं। तो हम चाहते हैं कि सारी इंसानियत की दुआ होगी तो उसमें बहुत भलाई होगी, सारी इंसानियत की भला होगी। तो हम चाह रहे हैं कि सारे जो है, सारे हमारे भाई हैं, सारे जो है दुनिया में रहने वाले इंसानियत, हमारी सारी इंसानियत हमारे भाईचारगी के लिए है। तो हम ये चाहेंगे कि जब मुल्क भर में अमन रहेगा, दुनिया भर में अमन रहेगा, तो हर कोई खुशहाल रहेगा। जो यहाँ पे कोई जो है ऐसी चीज नहीं होगी जिससे एक दूसरे की नाराजगी होगी। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत। गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। शहर के नवा इलाके निजामपेट की मजलिस बल्दिया के 33 वार्ड्स के लिए इंतखाबी अमल का आगाज हो चुका है। प्रगति नगर में नामजदगियां वसूल की जा रही हैं। रिटर्निंग ऑफिसरों का भी तकर्रुर अमल में आ चुका है। निजामपेट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर मुकुंद रेड्डी ने बताया कि तमाम इंतखाबी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। మున్సిపల్ ఎన్నికలు నిజాంపేట్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో 33 వార్డు ఉన్నాయి. ఇక్కడ 11 రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఒక అసిస్టెంట్ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ కూడా 11 మంది ఉన్నారు. అన్ని సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ వచ్చినటువంటి కంటెస్టింగ్ క్యాండిడేట్స్కి అప్లికేషన్స్ ఇవ్వడం, తర్వాత వాళ్ళు ఏదైతే అప్లై చేస్తున్నారో వాళ్ళన్నీ కూడా అప్లికేషన్స్ రిసీవ్ చేసుకోవడం అనేది ప్రారంభమైంది. అన్న తర్వాత పోలింగ్ స్టేషన్స్ అన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. తర్వాత బ్యాలెట్ బాక్సెస్ అన్నీ కూడా వచ్చేసాయి. తర్వాత డిఆర్సీ సెంటర్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ రిసెప్షన్ అండ్ కౌంటింగ్ సెంటర్స్ కూడా ఏర్పాటు గోకరాజు రంగరాజు కాలేజీలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అన్ని కార్యక్రమాలు ముమ్మరంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. తర్వాత ప్రశాంత వాతావరణంలో ప్రజలందరినీ కూడా సహకరించవలసిందిగా, అందరూ ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటులో పాల్గొని ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిగణించేటట్టుగా చేయవలసిందిగా ప్రజలందరికీ నిజాంపేట మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ప్రజలందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. नरसंगी पुलिस ने कोकापेट में एक विला से तलाई जेवरात और कीमती अशिया का सरखे करने वाले एक नेपाली जोड़े को इससे खबल के वो अपने मुल्क को फरार होते अपनी गिरफ्त में ले लिया। इंस्पेक्टर पुलिस नरसंगी जीवी रमना गौड़ ने बताया कि नेपाली जोड़ा एक एजेंसी के जरिए 27 दिसंबर को घरेलू कामकाज के लिए इस विला में मुलाजिमत हासिल किया था और 3 जनवरी की रात को अपने मालिक और दीगर 2 अरकान खानदान को खाने में ख्वाबावर अद्वियात मिलाकर सुला दिया और फिर सामान लेकर चंपत हो गए। 4 जनवरी को उनकी एक बेटी जो गच्ची बोली में रहती थी, फोन न उठाने पर विला पहुंच गई तो उसने अपने अरकान खानदान को नीम बेहोशी की हालत में पाया, जिन्हें बादशाह एम्बुलेंस के जरिए एक खानगी हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया। पुलिस नारसंगी को इस वाक़े की इत्तला दी गई, जिसने सीसीटीवी फुटेज और मुलजिमीन के सेलफोन से उनका पता चलाकर गिरफ्तार कर लिया। నార్సింగి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని పొలోమి అరిస్టో విలాస్లో కోకాపేట విలేజ్ పరిధిలో ఉంటుంది. అక్కడ మొన్న విల్లా నెంబర్ 44లో పని మనుషులుగా అంటే జాయిన్ అయిన వాళ్ళు 27th నాడు జాయిన్ అయ్యారు. అక్కడ డిసెంబర్ మంత్లో వాళ్ళని మచ్చిక చేసుకొని వాళ్ళ ఓనర్స్కి ఫుడ్లో సమ్ పాయిజనస్ సబ్స్టెన్స్ కలిపి వాళ్ళు స్లో కోల్పోయిన తర్వాత ఇంట్లో ఉన్న వస్తువుల్ని అక్కడ దోసుకొని పోవడం జరిగింది. వాళ్ళు అన్కాన్షియస్ అయితే వాళ్ళను కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేశారు. వాళ్ళు ఇప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ డేంజర్ ఉన్నారు. వీళ్ళ గురించి పర్టికులర్గా ఈ నేపాలీస్ అని చెప్పి ఐడెంటిఫై అంటే నేపాలీస్గా తెలిసింది. వాళ్ళ గురించి మన సైబరాబాద్ పోలీసులు వెతకడం జరుగుతుంది. ఎంతమంది సార్ వాళ్ళ ఇంట్లో మొత్తం? ఇంకా పోయింది కరెక్ట్గా క్లారిటీ లేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంకా కంప్లీట్ కాన్షియస్ స్టేజ్లో వచ్చి చూసుకొని చెప్పే పరిస్థితుల్లో లేరు. కానీ వాళ్ళని మాత్రం పెట్టుకునేటప్పుడు ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ పర్టికులర్గా ఈ అపార్ట్మెంట్స్లో కానీ విల్లాస్లో కానీ ఇళ్లలో కానీ హౌస్ మేట్స్గా పెట్టుకుంటున్న వాళ్ళు, డ్రైవర్స్గా పెట్టుకుంటున్న వాళ్ళ యాంటిసిడెంట్స్ని ప్రాపర్గా చెక్ చేసుకుని పర్టికులర్గా అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్ ఉన్న వాళ్ళ విషయంలో కాస్త జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఉండవలసిందిగా పోలీసుల తరఫున అందరి ఈ రెసిడెంట్స్కి విజ్ఞప్తి. పర్టికులర్గా ఇలాంటి ఏదైనా జరగడానికి సంఘటన జరిగితే కాస్త మనకు పోలీసింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు ఆధార్ కార్డు, వాళ్ళ రిఫరల్ నెంబరు, వాళ్ళ రిఫరెన్స్ ఇచ్చిన క్యాండిడేట్ ఎవరు,
వాళ్ళ యాక్సిడెంట్స్ని వెరిఫై చేసుకుంటానికి ఒకరిద్దరికి ఫోన్లు తెలిసిన వాళ్ళని మాట్లాడుకొని పెట్టుకుంటే మంచిది. अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई करते हुए ईरान ने आज सुबह की अवलिन सातों में बगदाद में वाक़ 2 अमरीकी अड्डों पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए। रात देर गए शुरू करदा इस कार्रवाई में जुमला 22 मिसाइल इस्तेमाल किए गए, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ऐनुल असद इलाके में आज का हमला ईरानी फौजी कमांडर कासिम सुलेमानी की हलाकत का इंतकाम था। इसी दौरान ईरान के सरकारी टीवी ने बताया कि 15 मिसाइल हमलों में 80 से ज़ायद अमरीकी फौजी जिन्हें वो दहशतगर्द समझता है हलाक हो गए। डीजल की कीमत 75 रुपये हो जाने के बाद शायद हैदराबाद मुल्क का सबसे महंगा तरीन शहर बन गया है। गुज़िश्ता 10 दिन से डीजल की कीमत में लगातार इजाफा हो रहा है। तेलंगाना पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने बताया कि आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में इजाफे से पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है और अंदेशा है कि आने वाले चंद दिनों में इसमें मजीद इजाफा होगा। यही हाल दूसरे शहरों का भी है। दिल्ली में कल डीजल की कीमत 68 रुपये 69 पैसे फी लीटर थी, जबकि मुंबई में 72 रुपये 14 पैसे, कलकत्ता में 71 रुपये 15 पैसे, बेंगलुरु में 71 रुपये 8 पैसे और चेन्नई में 72 रुपये 69 पैसे थी। लेकिन हैदराबाद में यही कीमत 75 रुपये को छू गई। पेट्रोल पंप रोजाना की मार्केट की कीमत के एतबार से पेट्रोल की कीमत में कमी बेशी करते रहते हैं। साबरमती पुलिस ने पेट्रोल और दूसरी पेट्रोलियम एशिया की खुलेआम फरोख्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया है। बोतलों में पेट्रोल लाने और इस्तेमाल के जरिए लोगों को जलाने के वाक़यात के पस मंजर में तमाम पेट्रोल बैंक्सों से कहा गया है कि वो सिर्फ गाड़ियों में पेट्रोल डालें और बोतलों में पेट्रोल फरोख्त करने से इज्तनाब करें। डिप्टी कमिश्नर पुलिस शमशाबाद एन प्रकाश रेड्डी ने बताया कि सिर्फ हंगामी हालात ही में बोतलों में पेट्रोल देने की इजाज़त होगी, ताहम इसके लिए खरीदार को पेट्रोल पंप पर अपनी शनाख्ती कार्ड और दीगर तफसीलात दर्ज करवाना होगा। उन्होंने मजीद बताया कि साबरमती पुलिस सड़कों के किनारे बोतलों में पेट्रोल फरोख्त करने वालों के खिलाफ भी मुहिम चलाएगी। जीएसएमसी के कमिश्नर लोकेश कुमार ने आज तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इजलास में वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी का जायजा लिया गया। रज़ाकाराना तंजीम हैज़ इंडिया ने जुमा 10 जनवरी को यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी की तरफ से निकाले जाने वाली तिरंगा रैली की तायीद का ऐलान किया है। हैज़ इंडिया की तंजीम जदीद भी अमल में आई है। मौलाना सैयद गुलाम खादरी कुतुब हुसैनी को सदर और सैयद मोहम्मद हुसैन खादरी एडवोकेट को जनरल सेक्रेटरी नामजद किया गया है। मां बाकी अहदेदारों के नामों का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गुलाम खादरी, कुतुब हुसैनी, खजर पाशा और हाफिज मुजफ्फर बंदर नवाजी ने अवाम से अपील की कि वो रैली को कामयाब बनाएं और एनआरसी के खिलाफ अपना शदीद एहतजाज दर्ज करवाएं। ये हम आप लोगों से दर्दमंदाना अपील करते हैं कि 10 तारीख के दिन ईदगाह से नक़ीब मिल्लत ने जो रैली का एहतमाम किया है उसको किसी तबके की ऐनक से मत देखिए, फ़िरक़े की ऐनक से मत देखिए। ये समझिए कि हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाना है और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सबूत देने के लिए आज हमसे ज़्यादा ही हिंदू भाई हमारी रैलियों में आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम इसको पेश नज़र रखते हुए हम उनका खैर मकदम करते और यही जज्बा परवान चढ़ा तो फ़िरक़ा परस्त ताकतें अपने घरों में बैठने के ऊपर मजबूर हो जाएंगी। ये बात को मैं आप लोगों से दर्दमंदाना अपील करते हुए 10 मार्च को, जैसा कि 10 जनवरी को हाफिज़ साहब हमारे गाजी मिल्लत हमारे अली बाबा साहब एला सब्ज ने जैसा अपील करे हैं, मैं भी आपसे दर्दमंदाना अपील कर रहा हूँ कि 10 जनवरी को 2 बजे दिन ईदगाह मिरालम से मार्च में शरीक होकर ये साबित कर दे कि हम जिंदा कौम हैं, हमारा वजूद आज बाकी है और इंशाअल्लाह कल तक बाकी रहे, सुबह से क़यामत तक बाकी रहेगा। और हमारे को आइडेंटिफिकेशन देने की ज़रूरत इस वास्ते नहीं है कि हम मरने के बाद भी 2 गज़ ज़मीन के मालिक हैं, तो हमारे वजूद है यहाँ पर। आपको आप हमारा अलबत्ता मोदी साहब से पूछिए कि आपका कहाँ है,
ان کا ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی کہ اپنے میں یہ پاپولیشن بڑھ رہا ہے، مسلمانوں کے پاپولیشن بڑھ رہے ہیں، ہندوؤں کے نہیں بڑھ رہے، اس میں آپ کا ہمارے مسلمانوں کا کیا قصور ہے بتائیے؟ ہر گھر میں دو ہونا تو مودی کے باوا کئی کو غلطی کرے اتنے لوگ کیسا ہو گئے؟ مودی کی فیملی دیکھیے 28 آدمی کی ممبر ہے، تو اس میں ہمارا قصور ہے کیا؟ اس کے تو مہربانی کر کے ایسے باتوں سے آپ لوگ میڈیا کی خاص طور پر میں آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اس وقت جمہوریت کو بچانے کے مین پلر ہیں، اور آپ اپنی زور قلم سے یہ بتا دیجئے کہ مودی ہوں دو یا اور RSS کے کوئی بھی رہن دو، آپ کے سامنے ٹکنے کے قابل نہیں۔ آپ اپنی طاقت کا قلم کے ذریعے، آواز کے ذریعے آپ عوام کو جگا دیجئے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی طاقت ایسی ہے کہ آپ جب میڈیا سے بات کریں گے، عوام کے دور جو جاتے ہیں تو وہ آگ کی طرح پھیلتے ہوئے عوام کے دماغوں میں بیٹھتی ہے۔ اور آج عوام کو سمجھانے کی ضرورت ہے NRC کیا ہے، CAA کیا ہے۔ جس دن یہ سمجھ جائیں گے، اور آج کسی پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور انسانیت جی عمارت کی ایک ایک اینٹ، ایک ایک نشانی جو ہے اس کی غمازی کریں گی کہ یہ ہے اصل میں جو ہے ہندوستانی شہری۔ اور کبھی ہم تو سرزمین حیدرآباد اور اطراف کے لوگوں سے کہ 10 جنوری کو بروز جمعہ عیدگاہ ہے میرالم پر جمعے کی نماز کا وقت متعین کیا گیا ہے 1 بجے، جس کا اعلان صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب رکن پارلیمان حیدرآباد نے کیا ہے۔ ان کی زیر قیادت، ان کی زیر نگرانی ایک انتہائی پرہجوم اور پرامن ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کا نام بھی جو ہے ترنگا مارچ، کہ اس ہمارے ملک کا جو عظیم جھنڈا ہے ان جھنڈوں کے ساتھ اسی نام سے موسوم کرتے ہوئے بلا لحاظ مذہب و ملت سب کو شرکت کی دعوت دی گئی۔ ہر سیکولر ذہن کے حامل تمام برادران وطن سے میری گزارش ہے، چاہے مرد ہو خواتین ہو، وہ آئیں، حکومت کے ناکام اور نامراد اور بالکل گھٹیا پالیسیوں کے خلاف اپنا احتجاج درج کرتے ہوئے اس ریلی کا حصہ بنیں۔ اور میں امید کرتا ہوں نوجوانوں سے، بزرگوں سے، مرد و خواتین سے اور ہر مذہب و ملت کے ماننے والوں سے بلا لحاظ مذہب و ملت ارسپیکٹو آف کاسٹ اینڈ ریلیجن سب سے میری گزارش ہے کہ وہ جوق در جوق آئیں اور ہمارے ملک میں جو بے چینی اور بدامنی پھیلی ہوئی ہے اس کا اظہار خیال جو ہے حکومت تک پہنچائیں کہ تمہارے ایسے بلوں کی وجہ سے آپس میں لوگوں میں بے چینی اور اضطراب آمیز کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ ایسی کیفیت کو دور کرنا ضروری ہے، سب مل کر اس کا اظہار کریں گے۔ اور جلوسیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ کی شان ہی رہی کہ ہمیشہ پرامن رہنے کی، اور اس جلوس میں بھی پرامن کیوں کہ ہم قانون کو بچانے کے لیے یہ احتجاجی ریلی منظم کر رہے ہیں۔ تو پھر ہم جب قانون کو بچانے کے لیے جب نکلتے ہیں تو قانون کو کوئی بھی جلوس کے ہاتھ میں لے نہیں سکتا، نہ لیتا ہے۔ تو ہماری شان ہی رہی کہ جتنے بھی احتجاجات سارے ملک میں ہوئے ہیں وہ بالکل پرامن رہے ہیں، اور انتہائی جو ہے اچھے شان و شوکت اور باوقار طریقے سے، اور اس دن ویسے بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جتنے بھی شرکت کریں گے جلوس اور ریلی میں، وہ مذہبی نعروں سے گریز کریں اور ملک کے وقار کے لیے نعرے لگائیں اور سمویدھان کے بچاؤ کے لیے نعرے لگائیں اور حکومت وقت کے جو ظالمانہ رویے کے خلاف نعرے لگائیں اور پھر ہندو مسلم ایکتائی کے نعرے لگائیں۔ تو میری گزارش ہے نوجوانوں سے، جوشیلے نوجوانوں سے اتحاد اور یکجہتی کے نعرے لگائیں۔ اور پھر دوسری چیز، جوق در جوق وقت مقررہ پر ضرور شرکت کریں گے۔ اور میری پھر سے اپیل ہے کہ بالکل ہر مسلمان، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور سیکولرزم شہری کا جو فریضہ ہے کہ ایسے بلوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے ریلی میں زیادہ سے زیادہ شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ جمعیت العلماء تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی مجلس عاملہ کا اجلاس آج یہاں منعقد ہوا، جس میں فروری کے پہلے ہفتے میں ملک کے موجودہ حالات پر حیدرآباد میں ایک عام جلسے کے پروگرام کو خطیت دی گئی۔ صدر جمعیت العلماء حافظ پیر شبیر احمد سابق MLC نے میڈیا کو بتایا کہ اس جلسے سے مرکزی جمعیت العلماء کے سیکریٹری جنرل مولانا محمود مدنی سابق MP اور دوسرے قائدین مخاطب کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ جمعیت العلماء دونوں ریاستوں کے تمام اضلاع میں ہر دن جلسوں اور ریلیوں کے ذریعے NRC اور CAA کے خلاف احتجاج کر رہی ہے اور عوام کو اس سیاہ قانون کے اثرات سے واقف کروا رہی ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس سیاہ قانون کو فی الفور واپس لے لے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक मुशावरती इजलास रियासत तेलंगाना और आंध्रा के अहम अकाबरीन को उलमा को बुला के एक बात तय की गई। तो जमीयत उलमा हिंद ने जो एक हफ़्ता पहले कुछ हमको अहकामात दिए थे उस पे अमल आवरी के लिए हमने हमारे अकाबरीन को बुलाकर उनके सामने रखा। सबसे पहली बात तो ये है कि इजलास आम हम करने वाले हैं फरवरी के पहले हफ्ते में। आंध्रा, तेलंगाना, रायलसीमा, ये तीनों में हम दोनों लोगों को उलमा को बुलाकर और आवाम को बुलाकर एक बहुत बड़ा जलसा हैदराबाद में करने वाले हैं और जिसमें मौलाना महमूद मदनी तशरीफ़ ला रहे हैं। तो इजलास जो है हम करेंगे। ये जमीयत उलमा हिंद ने ये भी तय किया है कि पूरे हिंदुस्तान में हर जो है सूबे के अंदर बड़े बड़े जलसे करें। उसके बाद जो है ना एक बहुत बड़ा जलसा दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में करने का इरादा है हमारा, ये तय किया है। तो दूसरी बात यह है कि अज़ला और मंडल में ये जो हमारे एहतजाज चल रहे हैं 13 तारीख़ से, 13 जो है ना दिसंबर से जो चल रहा है और अभी तक चल ही रहा हर ज़िले के अंदर, मंडल के अंदर, दोनों रियासतों में चल रहा है। इसको ऐसी जारी रखेंगे, तकरीबन 3 महीने तक चलता रहेगा। ये इस तरह तरतीब बनाया जाएगा कि एक ज़िले में आज एक ज़िले में होगा तो कल दूसरे ज़िले में होगा और वहाँ पे मंडलों के साथ होगा, तीसरे ज़िले में होगा। इस तरह 40 ज़िले होंगे तो 40 ज़िलों में 40 दिन होगा। उसके बाद फिर ऐसी कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और धरना जो चल रहा है अभी हमारे बहुत जगह चला धरना और अभी भी चल रहा है धरना, कई जो है ना ज़िलों के और मंडलों के अंदर धरना चल रहा है, उसको भी जो है ना मुसलसिल ये चलते रहेगा और चलाते रहेंगे। उसके बाद ये शहर हैदराबाद में भी जो है तकरीबन हमारे मुफ्ती साहब ने काफ़ी जगह किए हैं और फिर हर मोहल्ले के अंदर ये भी जो है ना एहतजाजी जलसा करेंगे, हर मोहल्ले के अंदर करेंगे और पीसफुल रहेगा, अमन और जो है ना शांति के साथ रहेगा, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं दिया जाएगा। ये एहतजाज किया जाएगा हमारे। और दूसरी बात यह है कि जितने भी एहतजाज हो रहे हैं हैदराबाद के अंदर या कहीं भी जो अज़ला में भी हो रहे हैं, कम्युनिस्ट के हो रहे हैं और कहीं भी हो रहे हैं, तो हमने ये इजाज़त दी है रियासत ने कि वहाँ भी उसमें शरीक हो जाए, हर जो एहतजाजी जलसे में शरीक हो, क्योंकि ये मसला सबका है, हमारा एक का नहीं है, सबका है। इख्तलाफ अपनी जगह होगा लेकिन इख्तलाफ से हट के हमारी जगह शरीक होने के लिए हमने इजाज़त दिया है पूरों को। और तीसरा बात यह है कि ये जो है शऊर बेदारी के जो ना एक जो स्कीम हमारी चल रही है, जो इस्लाह माशरा चलता था हमारा हमेशा, एक 20 दिन जो ना 10 दिन तेलंगाना में चलता था, 10 दिन आंध्रा में चलता था, उसको हमने इस्लाह माशरा की जगह शऊर बेदारी का जो ना जलसा कर रहे हैं, जो कल से शुरू हो रहा है, महबूब नगर से शुरू हो रहा है, कल से शुरू हो रहा है। और ये जो है ना वहाँ पे NRC और जो ना NPR के ताल्लुक़ से आवाम में भी बेदारी लाएंगे, वहाँ पर भी लोग पहुँचेंगे और आवाम को समझाएंगे ये क्या चीज़ है, किस तरह करना है और नहीं करना है, इस तरह उनके सामने ये बात रखेंगे। और तीसरी अहम बात यह है कि जो है तेलंगाना में और जो है ना तेलंगाना में जहाँ जलसे होंगे हमारे, हर जलसा होंगे, चलते रहेंगे जलसा, 1 महीने चलेगा या 2 महीने चलेगा। हम जो है यहाँ के CM से जो है ना मुतालिबा करेंगे कि आप NRC और NPR के ताल्लुक़ से असम्बली में पास करें और पास करके ये बताएं कि हम जो है ना इसके ख़िलाफ़ हैं। जिस तरह केरला हुकूमत ने जो पास किया, केरला असम्बली ने जो पास किया है, इसी तरह ये हुकूमत से भी मुतालिबा करेंगे। आप जो है ना ये मुतालिबा करेंगे और आप जब तक मुतालिबा नहीं जो हमारे कबूल नहीं करेंगे तो हमको सोचना पड़ेगा हमको क्या करना है। तो इसलिए इनसे मुतालिबा है कि गालिब ज़बानी बयान नहीं है, असम्बली बुलाएं, असम्बली में पास करें या खुल्ला आप ऐलान करें कि हम अपने इस रियासत में हम लागू नहीं करेंगे। इसी तरह आंध्रा में भी हम जो हमारे हैं उनको भी ये हमने एडवाइस दिया है कि वहाँ पर भी जो जितने जलसे होंगे वहाँ पर भी वो ऐलान करें, असम्बली में बुला कर असम्बली में ऐलान करें कि हम यहाँ नाफिज नहीं करेंगे। वो लोग ऐलान करें तो वो जैसा केरला तर्ज में हुआ इसी तरह हमको वहाँ भी करेंगे, तो जो ना हम जो है आपके साथ देने के बारे में सोचेंगे। ये हमारा असल मकसद है कि भाई इस वक्त जो है ना हुकूमतें खाली ऐलान कर रही है। केरला हुकूमत ने बाज़ाब्ता असम्बली में पास किया है, हम उनसे भी मुतालिबा कर रहे हैं कि आप पास करिए, उसके बाद जो है ना हमको इत्मीनान हो जाएगा कि आपने इसके ख़िलाफ़ है। खाली ज़बानी बोल देना हम नाफिज नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये कुछ होने वाला नहीं है। और तीसरी अहम बात हुकूमत हिंद से हमारा ये मुतालिबा रहेगा, जो हर जगह हम लोग कर रहे हैं जलसा,
वहाँ हुकूमत हिंद से मुतालिबा रहेगा कि 1990 और 2000 में और 2000 के अंदर और 2010 में जो मरदमशुमारी होती थी उसी मरदमशुमारी लाएं। 2020 में जो आप चेंजेस करके 2-4 बढ़ा दिया आपने, उसको निकालें। ये 2010 के अंदर जो मरदमशुमारी आती थी, अवाम खुश दिली के साथ उसको तकमील करते थे, उसी तरह जो है ना इस तरह लाएँ। और यही चीज़ें 2019 में जो आपने चेंजेस 2020 में जो चेंजेस किया है वो हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। हम नहीं मानते, हम जो पुराना है उसी पे हम चलेंगे, उसी को हम लिखाएंगे।